Hello students, myself Rakesh Misra. This is part 10 video of full revision of heredity and evolution. As you all know, evolution portion is no more. So in order to recognize how can we separate out the portion of evolution and the question of evolution from our uh, uh, revisional copy from our revisional books, that is the way to separate out. There are so many way by which we can recognize the portion of evolution, that is it is hard to separate out the some correlated concept regarding the heredity and evolution. So in order to overcome that problems, here you have the series of long and short answer type questions. In past 9 video you have seen the different questions, maybe the 1 marks, 2 marks, or maybe the 5 marks question that will continue in this video lecture 2. So this is the part 10 video in which you will learn the question number 55 onward, because the last video, that is the part 9 video, was based on the 49 to 50, not 49, that is 50 to 54, 50 to 54 video. That is part 8 was 49 to 44 to 49. This is the part 10 video. The part 9 video was based on question number 50 to 54. It means only 4 to 5 questions are taken out from each and every video. This is because of having the video type. This is because of having the question type. The question is very important, then I can take too longer time to revise them. This is because of only for your doubt clearance. If you are having doubt after getting the video, then you can frequently ask me in the live classes. The portion of heredity is very important. Most of the questions that may confuse you are actually taken out from the heredity topic. These all are taken out from the 10-year question. So don't waste time. You should have a copy pen in order to note down the important concept regarding the each and every questions that is regularly sending you, in order to as in form of the PDF, and their solution will be discussed in the video lecture. So without delay timing, let back over the question number 55 and revise them thoroughly. Now question number 54, that was over in previous video lecture. The question number 54 is clear, and that was actually based on Mendel's dihybrid cross, in which you have a condition, that is the plants are white flowers and having the purple. It means you should taken out, these are not dihybrid, this was actually based on monohybrid, in which for the purple you can make the genotype as capital P capital B. For the respect of purple you should make the white flower and their genotype as small p small p. अब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाएंगे तो F1 में क्या हो जाएगा, सब कैपिटल P स्मॉल p, और F2 में क्या हो जाएगा, कैपिटल P स्मॉल p. ठीक है, कैपिटल P स्मॉल p, और स्मॉल p का जो रेशियो आएगा वो 1:2:1 का आ जाएगा. ठीक है, तो यही सब पूछ रहा था लास्ट वीडियो लेक्चर में. ये सब आप अपने हिसाब से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55. क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है, इट इज़ अ मैटर ऑफ चांस वेदर अ कपल विल गिव द birth of a boy or girl. Justify the statements and support your answer with a neat illustration. अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये चांस ही है. ठीक है, ये लक नहीं होता, ये चांस ही होता है. ये गारंटी नहीं होती है कि जो पेरेंट्स होंगे उनके जो बच्चे होंगे वो बॉय ही होंगे या गर्ल्स होंगे. ये गारंटी नहीं होता, ये चांस होता है. अब ये चांस को कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो लिखेंगे येस द स्टेटमेंट इज ट्रू, द फॉर्मेशन ऑफ मेल और फीमेल चाइल्ड, that is the girls or boys, is due to the fusion of male and female gametes, and that is the chance, that is the matter of chance. Because when the sperm containing X chromosome from male is fused with the sperm containing that is fused with the any egg cells, that is the egg cells, and that is the sperm, then there will be possibility of only girl child, which we cannot sure with the girl childs. Why? Because the sperm containing Y chromosomes, if fused with the X, that is the fused with the egg cells, then there will be a chance of boy. So chance is the matter for the couples, for the boys or girls from the couples. This is not a matter of गारंटी. ठीक है, चांस और गारंटी में डिफरेंट होता है. इसको आप अपने लैंग्वेज में लिख लेंगे, एज वी नो दैट इट इज़ नॉट गारंटी द चाइल्ड विल बी गर्ल्स और बॉयज, इट इज़ द चांस.
If by chance the sperm fuse with the sperm containing X chromosome fuse with the X's, there will be a chance of girls. If the sperm containing Y chromosome fuse with the X's, there will be a chance of boys. अब यहाँ पे जो जस्टिफिकेशन होगा ना, ये आपको एक नीट इलुस्ट्रेशन बनाना पड़ेगा. आपको याद होगा मैंने इस इलुस्ट्रेशन बनाया था. आपको करना क्या था कि मेल लिख देना था, और मेल के लिए आप जो क्रोमोजोमल यूनिट्स बनाते हैं 44 प्लस XY, ये आपको लिख देना है. 44 प्लस XY का केस इस तरह से लिख देना है. और फीमेल के लिए भी सेम यही सिचुएशन रख देना है. ठीक है, फीमेल के लिए क्या रख देना है, फीमेल 44 प्लस XX. ठीक है, 44 प्लस XX. अब इससे जो गैमिट्स बनेंगे वो दो तरह के बनेंगे, 22 प्लस X, और दूसरे वाले गैमिट्स बनेंगे 22 प्लस Y. बट इससे जो गैमिट्स बनेंगे सिर्फ एक ही तरह के बनेंगे, 22 प्लस X, एंड दूसरा वाला भी यही रहेगा 22 प्लस X. मीन सिमिलर टाइप्स ऑफ गैमिट्स बनेंगे. अब क्या होगा, अगर फ्यूजन हो रहा है बाई चांस स्पर्म कंटेनिंग X क्रोमोजोम से, ठीक है, ओवा के साथ, तो ये क्या होगा, गर्ल. ठीक है, और स्पर्म कंटेनिंग Y क्रोमोजोम्स ओवा के साथ अगर फ्यूज हो रहा है तो क्या होगा, बॉय होगा. ठीक है, रीजन क्या है कि उनके बीच में जो क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटी है वो बदल जाएगी. इसके लिए क्या हो जाएगा, जब 22 फ्यूज करेंगे तो हो जाएगा 44, और प्लस ये X और X फ्यूज करेगा तो क्या हो जाएगा XX, यानी कि ये XX की वजह से गर्ल हो जाएगी. और ये 22 जब फ्यूज करेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा 44, और प्लस जब Y और X फ्यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा XY, यानी कि ये बॉय हो जाएंगे. तो ये चांस होता है. ठीक है, गारंटी नहीं होती. ये कॉपी में आप बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले आपको. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 56. 56 क्या रहा है, ऑल राउंड सीडेड प्लांट्स कैपिटल R इज क्रॉस्ड विथ अ रिंकल्ड सीडेड प्लांट स्मॉल r. फाइंड आउट द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप इन F1 एंड F2 जनरेशन. आई होप ये कर लेंगे. जीनोटाइप और फिनोटाइप F1 F2 में कैपिटल R. देखो रूल से करना है, इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ. रूल से करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले P लिखना पड़ेगा, पेरेंटल जनरेशन. उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसका जो जीनो फिनोटाइप लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो राउंड ऐसे लिख देंगे, राउंड. ठीक है, इसके बाद दूसरे का क्या हो जाएगा, रिंकल्ड. ठीक, इसके बाद इसका जीनोटाइप लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए कैपिटल R, और इसके लिए स्मॉल r. इसके लिए क्या इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, गैमिट्स. तो गैमिट्स में इससे एक गैमिट्स और इससे भी एक गैमिट्स. ठीक है, इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, क्रॉस आप चाहो तो इस तरह का क्रॉस करवा सकते हो. ठीक है, पुनेट स्क्वायर बना करके कैपिटल R, और इधर कैपिटल स्मॉल r, और सब में कैपिटल R स्मॉल r भरते जाएंगे, इसमें भी. तो ऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा, F1 क्रॉस में ये भर देंगे, और F1 P1 क्रॉस में ये भरा जाएगा, और F1 रिजल्ट में क्या भरेगा, कैपिटल R स्मॉल r. मीन्स क्या हो जाएगा, ऑल राउंड इन F1. फिर क्या हो जाएगा, F1 गैमिट्स कैसे बनाएंगे, F1 गैमिट्स बनाएंगे कैपिटल R स्मॉल r. ठीक है, ये दो तरह के गैमिट्स इससे बनेंगे, एक कैपिटल R वाले, एक स्मॉल r वाले. अब इसके बीच क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे F1 क्रॉस, और जब F1 क्रॉस करेंगे तो वही F1 वही F2 रिजल्ट होगा. फिर क्या करेंगे, फिर पुनेट स्क्वायर बनाना है. अब इसके बाद क्या लिखना है, कैपिटल R स्मॉल r, फिर लिख देना कैपिटल R स्मॉल r. इसमें क्या भरेगा, कैपिटल R स्मॉल r. ये क्या हो जाएगा, कैपिटल R स्मॉल r. ठीक है, अब आपको थोड़ा सा इसके फिनोटाइप पे फोकस करना है. ये क्या हो जाएंगे, राउंड, ये राउंड और ये रिंकल्ड. यानी कि राउंड और रिंकल्ड का जो फिनोटाइपिक रेशियो होगा वो 3:1 होगा. यानी कि हमको कैपिटल R कितनी बार मिला, कैपिटल R लास्ट में कितनी बार मिला, F2 में एक बार. कैपिटल R स्मॉल r कितनी बार मिला, 2 बार मिला. यानी कि कैपिटल R स्मॉल r कितना मिला था, 2 बार. और स्मॉल r कितनी बार मिला, ये स्मॉल r 1 बार मिला. ठीक है, तो कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल स्मॉल r के बीच में जो रेशियो है वो 1:2:1 के बीच का है. ठीक है, ये कॉपी में लिख लीजिएगा. और क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग पूछ रहा है. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑल राउंड सीडेड प्लांट्स कैपिटल R इज क्रॉस्ड विथ अ रिंकल्ड सीडेड प्लांट स्मॉल r. फाइंड आउट द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप इन F2 एंड F1 जनरेशन. तो जीनोटाइप और फिनोटाइप, F1 में जीनोटाइप क्या हो जाएगा, कैपिटल R स्मॉल r, और फिनोटाइप क्या हो जाएगा, ऑल राउंड. F2 में क्या हो जाएगा, जीनोटाइप हो जाएगा
वो हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर कितना हो जाएगा 1:2:1 के रेशियो में। और फिनोटाइप क्या हो जाएगा राउंड कितना हो जाएगा राउंड हो जाएगा 3 और रिंकल्ड हो जाएगा 1। ये आप कॉपी में लिख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है 57 पे आते हैं। 57 क्या कह रहा है, मेंडल स्टडीड द इनहेरिटेंस पैटर्न्स ऑफ ट्रैट्स इन पी प्लांट्स अकॉर्डिंग टू हिज स्टडीड ऑब्टेन 9:3:3:1 रेशियो ऑफ सर्टेन ट्रैट्स इन प्रोजेनी F2 generation based on it answer these question what traits did he studies। कौन कौन से ट्रैट्स को इसमें स्टडी किया था। 9:3:3:3 रेशियो लाने के लिए 3:1 रेशियो लाने के लिए कौन से ट्रैट्स की स्टडी किया था। तो लिखेंगे he studied the traits round yellow and wrinkled green seeded plants of P। ये बातें लिख लीजिएगा आगे, राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन सीडेड प्लांट्स ऑफ पी। अब आगे हाउ डू दे रिप्रेजेंट दीमसेल्फ। अब ये दोनों कैसे आपस में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है द राउंड येलो रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। दे आर डोमिनेंट एंड दे आर रिसेसिव। इट मीन्स राउंड येलो इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड ग्रीन सीडेड प्लांट्स। What was the traits in F1 progeny? All round and yellow F1 में। ठीक है which rule does this inheritance pattern suggest। ये कौन सा रूल इनहेरिटेंस पैटर्न्स को कहा गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लिखेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें कुछ बहुत बड़ा नहीं पूछा। ठीक है ये CC 2012 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58। हाउ कैन यू से दैट मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस द F2 डोमिनेंट आर नॉट ऑल द सेम। कह रहा है कि मेंडल्स का जो F2 डोमिनेंट है वो हमेशा हर बार सेम नहीं है। लिखेंगे कॉपी में वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स। 58 क्या लिखेंगे, वी कैन से ऑल डोमिनेंट इन F2 generation was not same in monohybrid cross because in F2 generation there are two types of dominant character expressed as capital R। for example अगर T के लिए ले रहे हैं टाल के लिए तो as capital T and capital T small t। both are follow the dominant characteristics but genetically the capital T is not similar with the capital T small t। these are the pure tall and this is the hybrid tall। so these are the two important way to define the F2 dominant are not all the same। F2 dominant are basically two types, the hybrid dominant, the pure dominant and recessive dominant। इसको आप कैरेक्टरिस्टिक बना के कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 58 में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है इस वीडियो को, ये वीडियो लास्ट वीडियो है हेरिडिटी इवोल्यूशन का। इस वीडियो में ही मैं सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है अब आते हैं मेंडल in one of his experiment with pea plants cross a variety having round seed with one having wrinkled seeds। write the observation giving F1 and F2 generation F2 progeny। अब कह रहा है मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट में एक बार राउंड सीड लिए और दूसरा क्या लिए, रिंकल्ड सीडेड प्लांट्स लिए। मैं आपको SW दे रहा हूँ रिंकल्ड सीडेड। अब इसका F1 का फिनोटाइप क्या होगा सबको पता है, राउंड होगा। और F2 का जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका आपको क्रॉस बना के आंसर लाने, ये 4 आएंगे कुल मिला के, कैपिटल आर स्मॉल आर ये 4 आएंगे। और F2 में क्या आएगा, F2 में आएगा रेशियो जो है कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर का जो रेशियो होगा 1:2:1 का आएगा। इट मीन्स ये रेशियो जीनोटिपिक रेशियो। तो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो आपसे पूछ रहा है। लिस्ट एनी 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स अदर देन राउंडनेस ऑफ पी सीड्स
दैट मेंडल यूज हिज एक्सपेरिमेंट विथ पी प्लांट्स। कह रहा है कि कोई और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लो, राउंडनेस ऑफ सीड्स को ना लो कोई और, तो अगर कोई और लोगे तो टालनेस ऑफ प्लांट्स ले लीजिए, ठीक है। पॉड पॉड कलर ले लीजिए, ग्रीन होता है इसमें डोमिनेंट और येलो होता है रिसेसिव, ठीक है। सीड कलर में येलो होता है डोमिनेंट और ग्रीन होता है रिसेसिव। प्लांट्स में टाल जो होता है डोमिनेंट होता है और ड्वार्फ जो है रिसेसिव होता है, ठीक है। फ्लावर का पोजीशन ले सकते हैं, एक्साइल और टर्मिनल। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जिसको आप ले सकते हैं। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं बचा है। 60 को मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, इसके बाद हम लोग लाइव प्रोसेस से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारा पूरा हम MCQs हो गया, मैच द फॉलोइंग होगा, फिल इन द ब्लैंक, सारी चीज़ें। सो अब आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट रेशियोज ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन। कह रहा है कि अप्रॉक्सीमेट रेशियो F2 जनरेशन में क्या ऑब्टेंड हुआ था। देखो क्वेश्चन ये इसका दिया नहीं है, ठीक है। अगर क्वेश्चन दिया रहता तो यहाँ पे हम लोग लिखते भी, ये क्वेश्चन शायद मिस कर गया है। सो आई होप ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे मिस कर गया है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे कोई एक क्वेश्चन ले सकते हैं या फिर रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वीडियो लेक्चर के साथ PDF में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 60 को इस वीडियो लेक्चर के साथ PDF में आपको मिलेगा। इसको आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो इसके लिए पैनिक नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 60 को मैं आपको वीडियो लेक्चर में इसका क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर दूंगा और इसको आपको सेल्फ सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप ये पूरी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। हमने हेरिडिटी से क्या क्या लिया था, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से MCQs कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैच द फॉलोइंग कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड इवन द 5 मार्क्स, ठीक है। वही मेंडल्स के लॉ, उसी के स्पेसिएशन, इवोल्यूशन, उसी में आपका जो है ट्रैट्स, डोमिनेंट, रिसेसिव, एक्वायर्ड्स, इसी की आसपास हमारा पूरा का पूरा थियरी और पूरा का पूरा जो है कॉन्सेप्ट घूमता रहा। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो हमसे लाइव क्लास में भी इंटरेक्ट रखते रहे और वो अलग से क्वेश्चन नोट करते रहे। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कैसे भी नोट करें, आपको जो है करना है कॉपी में सारे क्वेश्चन को आप कर डालेंगे कॉपी में। कुल 60 क्वेश्चन रहेंगे। इस क्वेश्चन को मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के साथ PDF में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आई होप आप वीडियो को देखेंगे, साथ साथ उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये पूरा इस क्वेश्चन में, इस वीडियो लेक्चर में हमने कुल 60 क्वेश्चन को लिया था, ठीक है। और वो सब लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, वो सब लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन टाइप थे। फिर से ये हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का पोर्शन यही खत्म होता है। रिवीजन मैंने करा दिया है, पढ़ाया भी है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे, ठीक है, जिसको आपको अपने अकॉर्डिंग करने थे और आई होप ये कर भी लिए होंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन का आंसर आप कॉपी में लिख लेंगे और इससे सिर्फ आपको हेरिडिटी वाले पोर्शन को रिवाइज करने में आसानी होगी। थैंक यू।